So we are going to start the new chapter and subtopic. The new chapter is going on organization of data and the subtopic is raw data. Uh, as you can see in page number 23, raw data. In the previous chapter, we have studied about the collection of data. Now we are arranging that raw data. How we are going to arrange like the कबाड़ी वाला अजग. यहाँ हमने पढ़ा था कि कबाड़ी वाला जैसे सारे कबाड़ इकट्ठा करता है, उसके बाद उसे स्प्लिट करके क्लासिफाइड करता है, राइट. हेयर वन टेबल इज देयर मैथमेटिक्स. 100 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में क्या मार्क्स पाए, तो एक रॉ डाटा दिया है, सारे मार्क्स दिए हुए हैं. और यू कुड हैव कलेक्टेड, दिस इज़ द रॉ फॉर्म कि हमारे पास सारे मार्क्स है. यू कुड हैव कलेक्ट डाटा ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड. इसी तरह मंथली जितना भी एक्सपेंडिचर होता है फूड पर, हमने ये लिखा है 1904 रुपीज़ खर्च हुआ, किसी महीने कुछ खर्च हुआ, किसी 50 हाउस होल्ड फैमिलीज़ का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर शो किया है. तो ये जो शो किया है वो रफली फॉर्म में है. दैट इज़ अ ट्रेंडस टास्क. अब it becomes a more trendious if instead of 100 we have to mark 1000 student. अब इसी तरह 1000 स्टूडेंट और 2000 स्टूडेंट 2000 स्टूडेंट या हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर हमें करना हो, तो इट्स डिफ़िकल्ट टास्क टू study with this raw data. So what we are going to, in one word we can say, there is a tremendous task to pull information from large unclassed data. अनक्लास डाटा है, इस तरह से दो टेबल दिए हुए हैं स्टूडेंट के डाटा, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे, इसको हम प्रॉपर वे में समराइज़ करेंगे. द रॉ डाटा आर समराइज एंड मेड comprehensible by classification with facts of similar characteristics are placed in the same class. It's enable one to locate them easily, make comparison and draw inference without any difficulty. तो what we have to do, we have to study in this chapter. हमने एक चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसेक्स, है ना. हमने सेंसेक्स पढ़ा था. सेंसेक्स में क्या था, गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करवाती थी. About 20 crore persons are contracted in Sensex in 2001. The raw data of the Sensex are so large and fragmented that they appear in almost impossible task to draw any meaningful conclusion from them. But when the same data is classified according to gender, education, martial status, occupation, etc., the structure and the nature of population of India is easily understand. यानी हमने सेंसेक्स में जो डाटा ओरिजिन से एनोमरेटर्स ने डाटा कलेक्ट किया था, उसमें उन्होंने फैमिली के साइज़ भी ली थी, जेंडर भी लिया था, एम्प्लॉयमेंट भी देखा था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गैदर की थी. अब यहाँ पर यदि उसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, अलग अलग सेक्टर्स में उसे स्टडी करने के लिए भेज दिया जाए, तो वो मीनिंगफुल हो जाएगा. द रॉ डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल्स एंड द रॉ डाटा इज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. स्पेसिफिक हम वेरिएबल्स जो हैं उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उन्हें इंस्टेंस विद द कंटेंट मार्क इन द मैथमेटिक्स कोड बाय 100 स्टूडेंट. हाउ कैन वी मेक सेंस ऑफ दीज मार्क्स? The mathematics teacher looking at these marks would be thinking, how have any student done, how many have not passed. How we classify the data depend upon the purpose we have in mind. In this case, the teacher wishes to understand the sub-depth how the students have done. She would probably choose the construct and frequency distribution. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से वो क्लासीफाई करेगी, उसको प्रॉपर वे में पुटअप करेगी, तब हमें रॉ डाटा से एक स्पेसिफिक हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे. Now moving on to next, that is classification of data. How we are going to classify, or we can say how the economists are going to classify. The group or classes of the classification is done in various ways. Instead of classifying your book according to the subject, history, geography, others, etc., you could have classified author-wise in alphabetical order, or you could have and classify them according to the year of publication. The way you want to classify them would depend upon your requirements. Likewise, the raw data is classified in various ways depending on the purpose.
and grouped according to them. Such classification is known as chronicle classification. In such a classification, data classified either ascending or descending order विथ रेफरेंस टू, अब हमें जितने भी डाटास कलेक्ट किए हैं, जो भी मार्क्स लिए हैं या सेंसेक्स का इकट्ठा किया है या सब्जेक्टिव है, तो उसे या तो क्रॉनिकल तरीक़ों से हम एडजस्टमेंट करेंगे या असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सेटअप करेंगे. द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया पॉपुलेशन का, तो ईयर्स दिए हैं 1951 से 2011 एक ईयर दिया है, उसका पॉपुलेशन दिया. अब यही पॉपुलेशन हर मंथ की दी होती तो बहुत जाइंट हो जाता, हर साल की दी हुई है. तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि 1951 में या 1981 में या 1911 में पॉपुलेशन क्या है. द स्पाइचुअल क्लासिफिकेशन, द डाटा क्लासिफाइड इनटू रेफरेंस टू द जोग्राफिकल द लोकेशन सच एस कंट्री, स्टेट, सिटीज़, इसमें भी यदि क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो डाटा काफ़ी, पहला तो हर डाटा को कलेक्ट करने का कोई मीनिंग होता है, उस पर कोई स्टडी होगी, उस पर कुछ प्रोग्राम पॉलिसी करके उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाएगा. And sometimes you have across a characteristic that cannot be expressed qualitative. Such characteristics are called quality attributes like nationality, literacy, regional, gender, martial status, marital status. ये सब चेक किया जाए तो ये हमारा नेशनल से डिपेंड करता है. They cannot be measured, yet these attributes can be classified on the basis of either the presence or absence of the qualitative character. Such a classification is attribute is called qualitative classification. और इसे क्लासीफाई करने के लिए एक पॉपुलेशन का फ्लो दिया है कि हम पॉपुलेशन हमने गैदर कर ली, अब उसमें मेल और फीमेल का हमने स्प्लिट किया, कितने मेल है कितने फीमेल है. उसके बाद मेल और फीमेल में भी हमने क्लासीफाई किया, मैरिड और अनमैरिड का क्लासिफिकेशन किया. तो हर एक का मोटिव है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये गैदरिंग क्यों की जा रही है. क्लासिफिकेशन द फर्स्ट स्टेज इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस. सबसे पहले हमें पॉपुलेशन ले ली, तो हमें चाहिए था देश की पॉपुलेशन कितनी है, उसको लेने के लिए हमने इसको गैदर किया. अब उसे क्लासीफाई किया तो कितने मेल कंट्री में कितने फीमेल कंट्री में, इस नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दिया तो उसने ये गैदरिंग की, ये क्लासीफाई किया. थर्ड स्टेज में हम देखें तो कितने मेल है जो मैरिड है, कितने फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं, जो कितने मेल है जो अनमैरिड है और या फीमेल. तो इससे धीरे धीरे क्लासिफिकेशन बढ़ता जाता है और हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट उसकी स्टडी करता है. व्हेन वी कलेक्ट द डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रुप इनटू क्लासेस इट बिकम क्वालिटेटिव. अब इससे क्या होता है, जब हम इस तरह के डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो क्वालिटेटिव डाटा बन जाता है. नाउ सम डाटा इज़ गिवन ओवर हियर, कैन सी मार्क्स इज़ गिवन एंड फ्रिक्वेंसी इज गिवन. अब इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में किया कि 0 to 10 कितने बच्चे हैं जिनको 0 से 10 तक के मार्क्स मिले, तो एक स्टूडेंट है. नाउ 10 to 20 कितने मार्क्स मिले हुए हैं, दैट इज़ 8. 20 to 30 दैट इज़ 6. 30 to 40 इस तरह का एक फ्रिक्वेंसी डाटा गिवन है जिसमें मैथ्स के मार्क्स गिवन है, किस बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो.